Today I am going to start the new topic. New topic is bank reconciliation statement. So first we will see the meaning of bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is a statement prepared to reconcile the differences between the balances as per the bank column of cash book and passbook on any given date. So bank reconciliation statement is a statement prepared to reconcile the difference between the balances as per the bank column of the cash book and passbook on any given date. So actually it is a statement. So we are preparing to reconcile. Reconcile means to tally or to remove the differences between the cash book and passbook on a particular date. So बैंक reconciliation statement जो एक तरह स्टेटमेंट है, ये इसलिए बनाया जाता है कि मतलब जब कैश बुक और पासबुक में कभी डिफरेंस आने से उसको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, टैली करने के लिए इसको जो है बनाया जाता है. इसी को बोलते हैं हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. So already we have studied cash book. So under cash book there are two columns are there. So already हम लोग cash book के बारे में पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में. So cash book में जो है दो कॉलम रहता है. One is cash column and another is what? Bank column. So it is a cash column and this is a bank column. Cash, then bank. So this side is receipt and this part is payment. And here we will write opening balance and closing balance we are writing under credit side. Now in the chapter bank reconciliation statement, that means we are going to study about पासबुक आल्सो. मतलब ये चैप्टर में जो है आपको क्या करेंगे. सो कैश बुक तो जो है अंडर कैश बुक विल टेक ओनली द बैंक कॉलम and not the cash column. So all the businessmen they are maintaining the account in the bank in the form of current account. So हर business में जो है आपको उनका जो है बैंक में current account रहता है. तो उसमें क्या करता है, sometime there is a difference is arising between cash book and passbook. So जो current account जो है बैंक में जो रखता है उसमें से जो है जो दोनों में से कभी कभी जो है डिफरेंसेस आता है. तो किस तरह का डिफरेंस आएगा, तो ये वो सारा डिफरेंस के बारे में ये चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी कैश बुक मीन्स देर आर टू कॉलम्स आर देयर, कैश कॉलम, बैंक कॉलम. हियर ऑल्सो इन क्रेडिट साइड ऑल्सो टू कॉलम्स आर देयर. हियर रिसीट, हियर पेमेंट. So whenever cash is coming or whenever checks are coming to the business means we'll write under this side, and whenever there is a payment, either it may be cash payment, either it may be check payment. But in the chapter we will take only the bank column only. So why means, so cash already means business only they dealing the cash, जो है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है. सो कैश जो है बिजनेस जो है डील करता है यहाँ पे, लेकिन बैंक जो है आपका दो जन के बीच में जो है रहता है. एक तो बिजनेस का बिजनेस से एक बुक मेंटेन करता है और एक जो है आपको क्या बैंक करता है.
क्योंकि जो है चेक जो है whenever there is a deposit to bank, so where we are depositing to bank means we are depositing into what? We are deposit check into bank, चेक को जमा करते हैं तो हिसाब किताब जो है आपको क्या बैंक रखता है, उसी तरह जो है बिजनेस भी रखेगा. जब when we are receiving check means we will write under this side, we will write the name of giver, जो इस साइड लिखेंगे जैसा कि डेटा लोन से यहाँ लिखेंगे. तो उसी तरह जो है आपका बैंक भी जो है अकाउंट मेंटेन करेगा. सो वो बुक का नाम है पासबुक बोलते हैं. सो दैट बुक नेम इज़ पासबुक. सो आई मीन्स व्हेन वी आर ओपनिंग अकाउंट इन द बैंक मीन्स so that bank will provide one book, that book name is a passbook, or we can say that is a bank statement. जब either you are opening a saving account or current account, whatever it may be, so the bank will provide the one book, that book name is what? Passbook, or it may be current account, whatever it may be. So इसमें क्या बोलेंगे? पासबुक बोलेंगे. ये किस तरह रहेगा? So first date, then particulars. Here that is debit. Debit means here withdrawal. Here it is credit. Credit means deposit. Last one is balance. अभी देखिए जैसा कि अगर हम लोग जो है कैश बुक में जो है वी विल टेक ओनली द बैंक कॉलम. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? बैंक कॉलम खाली हम लोग लेंगे, बैंक कॉलम ओनली, नॉट द कैश कॉलम. सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ पासबुक. सपोज टुडे वी आर ओपनिंग वन अकाउंट मीन्स जैसे कि अगर आपने अकाउंट ओपन किया 1/1/2021, देन हियर वी विल राइट बैलेंस, द बैंक विल राइट बैलेंस करके कितना, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल योर डिपॉजिट ₹10,000, तो यहाँ पे 10,000 रहेगा. जैसा कि यहाँ पे सोचिए फॉर एग्जाम्पल हियर ऑल्सो विल राइट ओपनिंग बैलेंस अंडर द बैंक कॉलम ₹10,000. जैसा कि वी आर डिपॉजिट चेक इनटू बैंक मीन्स सपोज नेक्स्ट डे, दैट मीन्स 2nd January, we are depositing check into bank means here we will write, the bank will write by check or cash करके लिखेगा. फॉर एग्जाम्पल 5,000, then they will write under credit column, that means credited. So rupees 10 plus 5 it will come 15,000. The passbook will show 15,000. So here suppose here we are making the payment means we'll write this side. जैसा कि अगर आप पेमेंट वगैरह करते तो इस साइड लिखते हैं. उसी तरह जब पैसा आप निकालेंगे when we withdraw cash from the banks, so how will they will show into the passbook means कैसे शो करेंगे? जैसा कि आप पैसा निकाल रहे हैं टू कैश बोल के दिखाएगा. सपोज वी आर विथड्रॉइंग 3,000, नाउ द बैलेंस अमाउंट इज 15 माइनस 3 12,000. जैसा कि ये बनाने का मेन मकसद क्या होना, जैसा कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जैसा कि आपका 10,000 है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जैसा कि यहाँ पे 8,000 है. सोचिए अंडर बैंक कॉलम. यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल 31 जनवरी 2021 का जैसा कि अभी सोचिए आपका बैलेंस यहाँ में जैसा कि सोचिए 6,000 है. तो उस तरह केसेस में क्या होगा? डिफरेंसेस आएगा. दैट मीन्स आपको क्यों क्या जो है आपका कैश बुक बैंक कॉलम जो है आपको कौन मेंटेन करता है? बिजनेस मेंटेन करता है. लेकिन पासबुक कौन मेंटेन करता है? सो बैंक. सो समटाइम यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू बुक्स. नॉर्मली इट मस्ट बी टैली, बोथ अमाउंट शुड बी टैली. नॉर्मली दोनों अमाउंट जो है आपको क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. बट नॉर्मली विल नॉट बी इक्वल. जो है आपको क्या नहीं रहेगा? दोनों इक्वल नहीं रहेगा. तो वो पर्पज़ के लिए जो है आपको BRR जो है आपको जानना जरूरी है. So cash book preparing by business, preparing by firm or business, and passbook is preparing by bank. अभी इसका opening balance, so it is a cash book means we are treated as it is assets. So the always the opening balance it will show on the what? Debit side. क्योंकि आपको पता है ये जो है आपका cash book जो है either it may be you are depositing, either you are keeping cash in hand or at bank, we will write the opening balance debit side. जैसे कि इसको opening balance debit side हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब जो है आपका अकाउंट में पैसा है. और इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? जैसा इसका डेबिट में रहेगा तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? उनसे क्रेडिट में रहेगा. सो इसका ओपनिंग बैलेंस जैसा कि आपका कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस रहेगा डेबिट साइड में, लेकिन जो है पासबुक का जो है आपका ओपनिंग बैलेंस
कहाँ पे रहेगा बोलने से credit side. So why the passbook is showing credit side means, so we know that is that cash is an asset for the business. That means we are keeping cash into bank means that is an asset for the business. So we will write debit side. But in the case of passbook, so this money is not about banker money, it is a बिजनेस मनी. ये जो पैसा जो है अपना बैंक में जो भी पैसा रखता है बैंक का पैसा नहीं है, वो किसका पैसा जो है कस्टमर का, नहीं तो जो है आपको क्या बिजनेस का पैसा है. सो द बैंक विल टेक अस दैट इज दैट अमाउंट विल टेक अस अबाउट लायबिलिटी. वो अमाउंट को कैसा दिखाएगा लायबिलिटी. सो वाई मीन्स, सो इट इज़ नॉट जस्ट वी आर कीपिंग मनी इन टू बैंक. सो whenever there is a demanding by the business or customer means that amount will what return to the particular customer. So that's why so the bank will take as a liability. इसलिए जो है इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि वो कैसा ट्रीट करेगा लायबिलिटी. क्योंकि जो है जिसने पैसा बैंक में रखा वो बिजनेस हो जैसा कि हम लोग जैसा कस्टमर हो जो भी है, जब अगर उनको पैसा निकालना चाहता है डिमांड करता है तो उनको देने पड़ता है. तो इसलिए इसको बोलते हैं मतलब जो है आपका ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड दिखाता है. तो लेकिन आपका कैश बुक कहाँ ओपनिंग बैलेंस रहेगा, डेबिट साइड. और जब पासबुक का जो ओपनिंग बैलेंस जो है इसका मतलब कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट साइड. अभी तो नॉर्मली जो है आपका दोनों में डिफरेंस, जैसा कि एग्जाम्पल से मैंने समझा है. सो विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी अंडरस्टूड द डिफरेंसेस. सो दिस पर्पस ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक. सो ये कारण का वजह से जो है आपको क्या, आपको जो है ये टॉपिक के बारे में लोग पढ़ेंगे. नाउ विल सी व्हाट आर द डिफरेंसेस कमिंग बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. Causes of differences. So first one is timing difference, and second one is errors. So there are two types of differences are there arising between the cash book and passbook. One is timing difference, another one is errors. Now first we will discuss timing difference. Suppose a business issued a check issued to creditors but not at presented for payment. So this is number one. Number two, check deposited into bank but not credited. Then third one, customers directly deposited into bank account. Then fourth, interest credited by the bank, then F, bank charges debited by the bank, then bills deposited but dishonor, then insurance or rent or taxes paid by the bank on the instruction of the business.
So these are some of the examples for the time difference. So time difference इस तरह का जो है आपका, इसका वजह से जो है आपको क्या कैश बुक और पासबुक का जो है डिफरेंस आने का चांसेस है। जैसा कि आज का डेट में, जैसा कि फॉर एग्जांपल 6 जनवरी 2021 issued a check to creditors rupees 10,000 रुपीज़ 10,000। जैसा कि चेक जो है अभी इशू किया, लेकिन जो है आपको क्या नहीं करता, चेक इशू किया लेकिन बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसने क्या किया, चेक को जाके कब जमा किया उन्होंने से, सो चेक डिपॉजिटेड ऑन 7 जनवरी 2021। जैसा कि आपका चेक जो है अभी इशू किया, लेकिन जो है उसने जाके कब जमा किया, जो है आपका 7 जनवरी 2021 को। So this is a cash book and this is a passbook. Here there is opening balance rupees 50,000. Here also the balance 50,000. So take the first example. So first one, the business had issued a check rupees 10,000, but the creditor deposited on next day, that means 7th January into bank. तो इसका वजह से जो है आपका डिफरेंस आता है। So immediately, so in business the accountant means immediately they will write under the credit side of cash book by creditors करके लिख देगा rupees 10,000. Here in 1st January, sorry 6th January, there is no changes in passbook. Why means there is no payment what? But the checks are not deposited in the same day, but it is deposited in the next day. मतलब क्या, 6 जनवरी को चेक इशू हुआ, लेकिन जो है सेम डेट में जाके बैंक में जो है जमा नहीं किया, इसलिए क्या नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन दूसरा दिन जाके जमा हुआ। लेकिन जो है जब चेक देने के साथ तुरंत क्या करेगा बिजनेस का जो है अकाउंटेंट, बिजनेस में जो अकाउंटेंट क्या करेगा, सो पेमेंट बोल के यहाँ पे क्या कर देगा, लिख देगा। तो अभी दोनों को कंपेयर करेगा। इसका अमाउंट अगर देखा जाने से, हियर द अमाउंट इज़ 50,000, 50 माइनस 10 इट विल कम 40। अभी बैलेंस अगर देखा जाने से, बैलेंस अगर क्लोजिंग बैलेंस देखने से, नेक्स्ट जो है जैसा कि यहाँ का बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा 40, बट यहाँ अगर क्लोज करके देगा यहाँ पे 50, उसका मतलब क्या है, इन पासबुक इज शोइंग द लेस अमाउंट, बट इन कैश बुक इज शोइंग द लेस अमाउंट एंड पासबुक इज शोइंग मोर अमाउंट। सो वाई मीन्स बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, इसका वजह से जो है आपका इसमें दोनों को जो है डिफरेंस आ रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या होना चाहिए, दोनों जो है इक्वल होना चाहिए। सो दिस है फर्स्ट टाइम डिफरेंस। सेकेंड वन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटर। जैसा कि बी, चेक जो है आपको क्या किया, बैंक में जमा किया चेक, जैसा कि चेक जो है बैंक में जमा किया, सो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, so immediately whenever we are receiving any check from any customer or from the debtor, from anybody, so directly here we will write the amount. So तुरंत जो है यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन क्या नहीं करेगा, सो तुरंत तो पेमेंट नहीं होएगा, क्योंकि जैसे कि अभी सोचिए आप SBI में अकाउंट रखें, कोई आपको जो है कैनरा बैंक का, नहीं तो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक का, दूसरा बैंक का चेक दे रहा है, तो उसको क्लियर होने के लिए जो है आपको 1-2 दिन टाइम लगता है, तो उसका वजह से भी क्या होगा, डिले होने का चांसेस है। तो उससे में दोनों को कंपेयर करेगा तो आपको क्या, कैश बुक जो अमाउंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वी आर रिटर्न सम अमाउंट वन डेबिट साइड, दैट मीन्स यू आर राइटिंग अ डेबिट साइड मीन द अमाउंट इज व्हाट, इंक्रीजिंग।
So here there is no changes under what? Passbook. So what will happen means you can see the difference between the two book. उस समय क्या आएगा, दोनों बुक में changes आएगा. So this is second one. The next one, customer directly deposit in bank. Sometimes the customer directly deposit into bank account. That means suppose here the customers are deposit money directly into the bank, means here the bank will write customer rupees करके जो है आपको क्या करेगा, deposit whenever there is a credited in the passbook, means that passbook amount will be what? Increase. जब भी जो है आपका पासबुक में डिपॉजिट साइड तो क्रेडिट साइड में लिख देगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है बढ़ जाएगा. लेकिन जो है आपको क्या है, सो द बिजनेस द डोंट नो व्हेन द कस्टमर इज डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, सो दैट्स व्हाई देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. उसने जो है जब आप बिजनेस जाकर बैंक जाएगा, नहीं तो बैंक अगर स्टेटमेंट भेजेगा तभी उनको क्या करेगा, पता चले कि मतलब कस्टमर ने आपका अकाउंट में पैसा डाला, इसलिए क्या हो गया, यहाँ का पैसा जो है पासबुक में अमाउंट जो है ज़्यादा दिखा रहा है, कैश बुक में कम दिखा रहा है, आपको क्या उनको आइडिया मिलेगा. सो नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट क्रेडिट ऑफ बैंक. सो वी आर डिपॉजिटिंग मनी इनटू बैंक मीन्स सो द बिजनेस, सो बैंक इज गिविंग सम इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट. जो है अगर आप बैंक में अगर पैसा रखेंगे तो क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा. सो दैट इज़ ए इनकम फॉर द बिजनेस. जैसा कि यहाँ लिखिएगा बाई इंटरेस्ट. सो व्हेन देयर इज ए क्रेडिटेड मीन जो है आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अमाउंट बढ़ जाएगा. बट देयर इज नो इंडिमेशन टू द व्हाट, टू द बिजनेस मीन्स व्हाट विल हैपन मीन्स so that cash book amount will be shown less and passbook amount will be shown more. जैसा कि अगर इंटरेस्ट दे रहा है, जैसा कि ईयरली 2 टाइम्स देगा बैंक, जैसा आजकल तो क्वार्टर भी देता है, जैसा कि आपको क्या है, जब इंटरेस्ट दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट जो है बढ़ जाएगा किसमें, पासबुक में. लेकिन कैश बुक में क्या हो जाएगा, कम दिखाएगा, क्योंकि पता नहीं कि आपको पैसा बैंक ने आपको कब इंटरेस्ट दिया करके. तो इस तरह का ये भी डिफरेंस आएगा. देन बैंक चार्ज डेबिटेड द बैंक. जैसा कि नॉर्मली सो द बिजनेस आर गिविंग सर्विस टू द कस्टमर और बिजनेस मीन्स सर दे विल चार्ज सम अमाउंट ऑन व्हाट, कस्टमर, मतलब कस्टमर से कुछ पैसा भी काटे, जैसा कि आपका कलेक्शन चार्जेस हो गया, देन आपको ATM चार्जेस, चेक बुक चार्जेस लाइक दैट. सो दैट अमाउंट डायरेक्टली दे विल विथड्रॉ फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बिजनेस अमाउंट, बिजनेस बुक से. जैसे कि आपको बैंक चार्जेस बोल के क्या करेगा, आपका अकाउंट से पैसा डायरेक्टली निकाल लेगा. सो यहाँ पे निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, इसका जो है पासबुक का अमाउंट जो है आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो है कैश बुक का अमाउंट जो है ज़्यादा रहेगा. क्योंकि जो है कब उसने जो है बैंक ने कब उसको जो है अमाउंट जो निकाला, बल्कि उनको पता नहीं होगा. जब बैंक अगर बिजनेस विजिट करेगा, नहीं तो आपको क्या, जब स्टेटमेंट भेजेगा तभी क्या करेगा, बिजनेस को पता होगा कि इसका वजह से जो है पैसा काटा गया बल्कि. सो दिस है नेक्स्ट डिफरेंस. द बिल्स डिपॉजिट बट डिसऑनर. जैसा कि किसी से बिल मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मिला है, उसको जाके क्या करें, जब तुरंत हम लोग क्या किया होगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दिया चेक, नहीं तो चेक डिपॉजिटर, नहीं तो बिल डिपॉजिटर अगर जमा किया तुरंत यहाँ पे हम लोग क्या किया होगा, जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया तो यहाँ पे तुरंत लिख दिया होगा. लेकिन क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. डिसऑनर मतलब क्या, अकाउंट में पैसा नहीं था होगा, नहीं तो डेट ज़्यादा हो गया होगा, उसका वजह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो क्या किया होगा, इसमें इस साइड लिख दिया होगा रिवर्स एंट्री, जैसा जो दिया उसी को क्या करेगा, यहाँ पे डिसऑनर बोल के लिख दिया होगा. तो उसमें क्या करेगा, आपका पासबुक में जो है अमाउंट कम रहेगा और इसमें ज़्यादा रहेगा. द इंश्योरेंस रेंट टैक्सेस पेड विद बैंक. जैसा कि अगर जो है अगर पहले से इंस्ट्रक्शन अगर बिजनेस ने दिया है, अगर बैंक को अगर ये सारा अमाउंट को पे करने के लिए, सो जब उनका ड्यू डेट रहेगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बैंक ने पे कर देगा. पे करेगा तो क्या करेगा, आप ही को पैसा से निकाल के आपका ऑटोमेटिक क्या करेगा, डेबिट कर देगा. जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, टैक्सेस. सो आपको क्या करेगा, आपको पैसे से निकाल के क्या करेगा, ये करेगा. मतलब डेबिटर, डेबिटर मतलब क्या, पेमेंट, विड्रॉल है. क्रेडिट मतलब जो है आपका अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, नहीं तो अमाउंट बढ़ रहा है. विड्रॉल मतलब, डेबिटेड मतलब पैसा जो है मतलब आपका अमाउंट घट रहा है. सो इस तरह का जो है इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस. सो नेक्स्ट, errors committed by there are two types of errors are there. One is errors committed by the business, another error is committed by the bank. दो तरह का error हो सकता है. errors committed by the firm, and second one errors
committed by the bank for recording the transaction in the passbook. जैसा कि अभी फर्स्ट वन, errors committed with the firm. Suppose the business received a check from debtor rupees 50,000, but at the time I enter in the cash book on the debit side, so the return only 5,000. जैसा कि एक चेक मिला है डेटार से 50,000 का, लेकिन लिख दिया कितना 5,000. नहीं तो जैसा कि पेमेंट साइड, सपोज द चेक्स आर इशूड टू समवन रुपीज़ 10,000, बट बाय मिस्टेक रुपीज़ 1,000 रिटर्न. तो इस तरह को बोलते हैं एरर्स बोल के, जो है अननोइंगली. तो उसी तरह बैंक भी क्या करेगा, बैंक साइड से तो जो है आपको मिस्टेक होने का बहुत ही कम चांसेस है. अगर होता है तो क्या बहुत ही रेयरली 1% हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है फॉर्म को साइड से जो है एरर्स हो सकता है. जैसा कि अभी जैसा कि आपका डेबिट साइड ही पकड़िए इसको, डेबिट साइड में 50,000 का जहाँ पे कितना लिख दिया 5,000 लिख दिया. तो उस तरह केसेस में क्या हो जाएगा, पासबुक में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको 5,000 लिखा है, यहाँ में क्या हो जाएगा अमाउंट जो है 45,000 ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है आपने क्या लिखा 5,000 ही लिखा है, यहाँ पे 45,000 ज़्यादा रहेगा. तो उस तरह केसेस में क्या रहेगा, एक जो है बड़ा अमाउंट जो है ज़्यादा शो करेगा, इसमें लेस दिखाएगा, इसमें मोर रहेगा. तो इस तरह का एरर्स जो है दोनों कर सकते हैं. सो दिस आर टाइम डिफरेंस. तो यही बेस में क्या करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे. सो नेक्स्ट वन, बैलेंसेस. So under BRS there are two types of balances are there. One is favorable balance, another one is unfavorable balance, or we can say that is a overdraft also. Overdraft. So favorable balance मतलब डेबिट कैश बुक शोइंग डेबिट बैलेंस. अगर आपको क्या कैश बुक क्या रहेगा शो करेगा, डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट जो है आपका पासबुक जो है कौन सा शो करेगा, दैट मीन्स आपका अकाउंट में पैसा होने से क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट साइड. दैट मीन्स आपका अकाउंट में पैसा होने से क्या करेगा, कैश बुक जो है कैश बुक में बैंक कॉलम जो है डेबिट शो करेगा. उसी तरह अगर सोचिए अकाउंट में पैसा है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस. सो कैश बुक का जो है आपको ऑपोजिट डेबिट वन से क्या आ जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये एसेट है इसलिए डेबिट में रहता है, ये लायबिलिटी मानते हैं इसलिए क्रेडिट साइड में शो करेगा. सो और एक अनफेवरेबल बैलेंस, तो इसका कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस कहाँ शो करेगा, सो क्रेडिट साइड में शो करेगा क्रेडिट बैलेंस. दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस जो है आपका क्रेडिट साइड रहेगा. उसी तरह पासबुक जो है आपका ये जो है डेबिट साइड रहेगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा. तो उसी का है दो तरह का बैलेंसेस होता है. सो फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट प्लस साइन एंड अनफेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स माइनस साइन. फेवरेबल बैलेंस का मतलब अकाउंट में पैसा है, और यहाँ पे जो अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब आपने क्या किया, बैंक से बोरो किया ओवरड्राफ्ट के नाम से, उसको बाद में आपको रिटर्न करना है. तो इस तरह का जो है आपको बैलेंस जानना है.